ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ electrostatic potential with reference to source charge। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਊ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਊ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ A ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ B। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ A ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ B ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ P। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ A ਤੇ B ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਵਾ, RB। ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ, RB। R ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ B ਕੀ ਆ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ B ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਤੇ A ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, RA ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ X ਦੂਰ ਵਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ Q ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਟਾਸਕ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟਾਸਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ A ਤੇ B ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ A ਤੇ B ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ A ਤੇ B, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Q ਆਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਲੈਟ A B ਇਜ਼ ਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਚਾਰਜ Q and P is any other point in the electric field. Then describe the position vectors RA and RB of B and A। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ P, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪਤਾ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, P ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। P ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੌਟ, ਤੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਏ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ Q ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ Q ਚਾਰਜ ਆ, ਮੈਂ Q ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਆ। Q 5 ਕੂਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ Q 10 ਕੂਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ Q ਚਾਰਜ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫੋਰਸ ਐਟ Q ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ QE। ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ, ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ Q ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਹੁਣ देखो मैं फिर इत्थे गल क्लीयर कर दिंदा वा, जेकर इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 5 न्यूटन बाहर नूं लगदी पई आ ते सानू अंदर नूं लैके आउण वास्ते 5 न्यूटन तो थोड़ी जी ज़्यादा फोर्स चाहिदी आ, पर वो ज़्यादा किन्नी चाहिदी आ उहनूं आपां डिफाइन नहीं कर सकते। इस करके असीं की मान लैंदे आ कि जिन्नी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगदी पई आ घट तो घट उन्नी अपलाई फोर्स तुसीं करोगे तो बॉडी अंदर आ जाएगी। हुण असीं इहनूं अंदर लैके आउणा वा, तो जे अंदर लैके आना मैं मान लो कि इनू थोड़ा जिहा dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, बहुत थोड़ा जिहा dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो ये जिहड़ा डिफरेंशियल वर्क आ dw, ये डिफरेंशियल वर्क कितना होएगा f अप्लाइड इंटू dx, क्योंकि सानू पता वा कि वर्क दे विच की आ डॉट प्रोडक्ट हुंदी आ, ये साडा डिफरेंशियल वर्क आया। पर असी वर्क पता किहदा करना वा, असी वर्क पता करना वा ए तो लैके बी तक, मतलब ए तो लैके बी तक सानू कितना वर्क करना पिया, क्योंकि सानू पता वा कि एक जगह तो लैके दूसरी जगह तक जाण लई इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच जिन्ना सानू वर्क करना पएगा वो की होएगा उस जगह दा पोटैंशियल डिफरेंस होएगा। असी बाहरों लैके आए हाँ कि एक P पॉइंट तो थोड़ा जिहा dx डिस्टेंस मूव की तो सानू कितना वर्क करना पिया, इन्ना वर्क करना पिया। हुण देखो मैं इत्थे F अप्लाइड लिखिया होया वा, मैं इत्थे इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लिखिया, मैं ये जरूर कहा वा कि जिन्नी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर नूं लगेगी उन्ना ही असी अप्लाइड फोर्स इधर नूं लावांगे, तो साडे कोलों यह वर्क की आएगा इस इक्वेशन दे विच आएगा। जेकर आपां इस इक्वेशन नूं सॉल्व करिए तो साडे कोलों की आएगा dw F अप्लाइड कितना वा, F अप्लाइड आपां इत्थों कढ लैंदे आ Q लगा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 E की वैल्यू भर रहा वा, Q नूं मैं एज इट इज़ लिख लिया, E की वैल्यू उपर लिखी आ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x स्क्वायर। ए वाला आया साडे कोलों, ये की आ डिफरेंशियल वर्क, इत्थे dx भी आएगा। मैं जस्ट की कीता वा इस F अप्लाइड की वैल्यू भरी आ इत्थे, क्योंकि F अप्लाइड किहदे बराबर आ, F अप्लाइड इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही आ। तुसीं इत्थे भी वैल्यू भर सकते जो Q अपॉन 4 पाई, इत्थे E की वैल्यू भर लो एप्सिलॉन 0 Q बटा x स्क्वायर, तो समझ लो इस F की वैल्यू मैं इत्थे भरती आ। हुण देखो ये की आ, ये डिफरेंशियल वर्क आ इत्थों लैके इत्थों तक दा। असल दे विच ये जिहड़ी डिफरेंशियल डिस्टेंस हुंदी आ ना, जिवें कि इत्थे मैं कहता कि इन्नी डिस्टेंस जिहड़ी आ वो डिफरेंशियल डिस्टेंस आ dx, पर डिफरेंशियल जिहड़ी डिस्टेंस हुंदी आ ना वो बहुत ही घट हुंदी आ, बहुत ही माइनर हुंदी आ। इत्थे असीं बेशक दिखाण वास्ते कोई फाइनाइट जी डिस्टेंस लै ली आ दिखाण वास्ते, पर डिफरेंशियल डिस्टेंस बहुत थोड़ी हुंदी आ। फिर आपां डिफरेंशियल डिस्टेंस लैने क्यों आ, क्योंकि सानू पता वा कि जेकर असी वड्डी डिस्टेंस लवांगे, मान लो मैं इस पॉइंट तो इत्थों तक डिस्टेंस लै लेना P तो A तक, तो उत्थे साडियां इक्वेशनस कित्थे गड़बड़ाउणगियां, सानू पता कि साडी इक्वेशन इस तरीके नाल जिहड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि इस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड होर वा ते इस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड होर वा, ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी ते आपां वैल्यू भरी विच आ देखो, मतलब कहण दा कि जदों असी P पॉइंट लिया ना, तो मान लो ए P पॉइंट आ A पॉइंट आ B पॉइंट आ, तो मैं कह रहा वा आपां छोटी जी डिस्टेंस dx मूव कराया वा ते उहदा वर्क देखिया, वो छोटी जी डिस्टेंस dx कित्थे आ, वो इत्थे की आ किते बिल्कुल नाल ही आ किते, असी डायग्राम दे विच बिल्कुल इत्थे इदां दिखाता वा, पर जिहड़ी डिफरेंशियल डिस्टेंस है ना वो बहुत ही माइनर हुंदी आ। आपां डिफरेंशियल डिस्टेंस लैने क्यों आ, क्योंकि जेकर असी ज़्यादा डिस्टेंस लवांगे तो उत्थे साडे अदर पैरामीटर आ वो चेंज हो जाणगे। किहड़े किहड़े पैरामीटर चेंज होणगे, हुण देखो जे मैं डिस्टेंस लै लैना वा इन्नी इस जगह ते, इत्थे फोर्स कुछ होर वा क्योंकि इधर चार्ज वा, इत्थे फोर्स कुछ होर वा क्योंकि फोर्स आर ते डिपेंड करदी आ, ते इत्थे फोर्स कुछ होर वा, ते जे फोर्स कुछ होर वा ते इलैक्ट्रिक फील्ड भी कुछ होर आ। तो यदा मतलब जदों तुसीं इत्थों इधर नूं मूव करना वा तो उत्थे दो इलैक्ट्रिक फील्ड हो गए ना, जे तुसीं एंड वाले पार्ट्स ते देखदे जो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड होर इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड होर। असीं डिफरेंशियल डिस्टेंस तां लैंदे आ कि छोटी जी कि उस डिफरेंशियल डिस्टेंस दे विच आपां मान लिया कि साडा इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होया। जिवें हुण इधर आओ आपां कहा सी डिफरेंशियल वर्क पता करना डिफरेंशियल डिस्टेंस dx दा,
ਇਹ dx डिस्टेंस ले ली, पर आपां जिहड़ी फोर्स वा देखो चेंज नहीं करते पे, भावें अपलाइड आ। सानू पता वा कि जदों भी असीं इधरों अगे नूं वधांगे ते साडी पल पल फोर्स जिहड़ी आ वो वधदी जानी आ, क्योंकि सामने चार्ज वा। असीं की कीता, असी बड़ी छोटी जी डिस्टेंस रख ली कि उन्नी क डिस्टेंस च मान लो साडी फोर्स नहीं वधी तो ना कोई इलैक्ट्रिक फील्ड बनिया, वधिया जां ना घटिया। सो उस तरीके नाल असी ए वाली इक्वेशन बना ली आ। मेरे कहने का मतलब इत्थे मैं ज़्यादा जोर इस चीज़ ते दे रहा वां कि असी डिफरेंशियल डिस्टेंस क्यों लैंदे आ, क्योंकि डिफरेंशियल डिस्टेंस दे विच उन्नी क छोटी जी डिस्टेंस दे विच साडे बहुते पैरामीटर चेंज नहीं हुंदे। हुण देखो इत्थे एफ अप्लाइड आपां भरता, डी एक्स एज इट इज़ लाता, पर साडी टास्क की आ, साडी टास्क आ कि वर्क पता करो ए तो लैके बी तक। मतलब जे असी डिफरेंशियल वर्क तो वर्क पता करना होवे कित्थों लैके कित्थों तक, ए तो बी तक, तो आपां की करांगे, इस डिफरेंशियल वर्क नूं इंटीग्रेट कर दांगे। इंटीग्रेट का मतलब की आ, देखो इंटीग्रेट का मतलब ये आ, इधर देखो कि मान लो पहला असी डिफरेंशियल डिस्टेंस डी एक्स इन्नी सी, बहुत छोटी सी, अगली डी एक्स भी लै लो, अगली डी एक्स भी लै लो, अगली डी एक्स भी लै लो, वो सारियां डी एक्स डिस्टेंस नूं जोड़ के जिहड़ी वैल्यू आनी है ना, वो की आ, वो पहला पी तो ए तक दी बनेगी, वर्क बनेगी, फिर ए तो बी तक दा वर्क कैलकुलेट कर लो। मतलब डिफरेंशियल डिस्टेंस दे विच आपां वर्क पता कर लिया, हुण अगली डिफरेंशियल डिस्टेंस लै लो, उहदा वर्क पता कर लो, फिर अगली डिफरेंशियल डिस्टेंस लै लो, उहदा वर्क पता कर लो, तो फिर सारियां नूं जोड़ दो। असी ये छोटा छोटा डिफरेंशियल वर्क लैके ही क्यों जोड़ रहे हैं, असी सारा इकट्ठा क्यों नहीं जोड़ रहे कि जिवें मैं कहता कि वर्क पता करो ए तो लैके बी तक दा, वो इस करके नहीं जोड़ रहे क्योंकि ए तो तुसी 1 सेंटीमीटर अगे जाओगे वो वर्क हो रहा, अगला सेंटीमीटर कवर करोगे वर्क ज़्यादा लगेगा, उतों अगला सेंटीमीटर कवर करोगे तो वर्क होर ज़्यादा लगेगा। मेरे कहने का मतलब आ कि फिर वर्क की आ, वर्क वेरीएबल आ, तो जो वर्क वेरीएबल आ ना फिर असी इंटीग्रेट साइन यूज़ करते हैं, ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये सानू की कह रहा वा, ए वाला ये कह रहा वा कि टोटल ए तो लैके बी तक, ए तो लैके बी तक सारा वर्क कैलकुलेट करके मैं दवांगा, ये ऑपरेटर कैलकुलेट करके देगा। तो असी कैलकुलेट करवा लेने देखो, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इक्वेशन दे इत्थे भी मैं इंटीग्रेशन लगाती आ, इस जगह ते भी मैं इंटीग्रेशन लगाती आ, तो मेरे कोलों यह वाली इक्वेशन बन गई है। हुण जिहड़े कॉन्सटेंट होण वो इंटीग्रेशन तो बाहर कढ़ लईदे आ, ते आपां ये कॉन्सटेंट की करते हैं इंटीग्रेशन तो बाहर कढ़ लैंदे आ। साडे कोलों की आया वर्क डन ए टू बी, इनू छड्ड दिंदे आ, इहदी हुण जरूरत नहीं हैगी। ते नैक्सट क्यू भी कॉन्सटेंट आ ते वड्डा क्यू भी कॉन्सटेंट आ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कॉन्सटेंट आ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की सानू वैल्यू पता है, एक्स कॉन्सटेंट नहीं आ, नीचे एक्स स्क्वायर इत्थे डी एक्स, एक्स कॉन्सटेंट क्यों नहीं आ, क्योंकि एक्स तो चेंज हो रहा ना, ए दे उपर एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की आ ए वाली दूरी, ए ते वैल्यू एक्स की कुछ होर आ, दूरी कुछ होर आ, बी दे उपर दूरी कुछ होर वा, ते सानू पता वा असी ए तो बी तक जाना वा। जे असी ए तो बी तक जाना ना, आपां लिमिट पा दिंदे आ आर ए तो लैके आर बी तक जाना है। हुण देखो इत्थे एक गल याद रखो, ये जिहड़ा वर्क आ ना, ये वर्क असल दे विच नैगेटिव आ, असी इत्थे साइन लगाउणा वा नैगेटिव दा। मैं दसदा क्यों साइन लगाउणा नैगेटिव दा। ये साइन नैगेटिव दा तां करके लगेगा जदों तुसी अप्लाइड फोर्स ला रहे जो ना, अप्लाइड फोर्स की डायरैक्शन की आ, ए वाली डायरैक्शन आ, इधर नूं ला रहे इस डायग्राम के हिसाब दे नाल, पर साडे कोलों अप्लाइड फोर्स की डायरैक्शन इधर आ, डी एक्स की डायरैक्शन किधर नूं आ, डी एक्स की डायरैक्शन हमेशा जिहड़ी आ वो सोर्स चार्ज तो वेखी जाती आ, वो इधर नूं होएगी। मैं ये गल कह रहा, जेकर तुसी आर ए ते आर बी लेंथ मापनी होवे ते किधरों मापनी आ, सोर्स चार्ज वालों ही मापोगे ना, इहदा मतलब ये जिहड़ा पोजीशन वैक्टर वा इहदी डायरैक्शन इधर नूं आ, अप्लाइड फोर्स की डायरैक्शन इधर नूं आ, एक पॉजिटिव आ एक नैगेटिव आ, ते साडे कोलों वर्क की होना, वर्क नैगेटिव होना, इत्थे आपां नैगेटिव नैगेटिव लगावांगे ते इत्थे भी आपां नैगेटिव लगावांगे।
सो ये समझ लग गई होएगी कि मैं नैगेटिव वर्क किवें इंट्रोड्यूस किया। मैं पहला जानबूझ के इनू इंट्रोड्यूस नहीं किया नैगेटिव वर्क नूं, क्योंकि मेरी डिस्कशन बाकी सी ते मैं नहीं सी चाहता कि डिस्कशन दे विच ये नैगेटिव साइन जिहड़ा वा वो प्रॉपर तरीके नाल ना समझ लगे। मैं इनू फिर एक बारी दस दिंदा वां कि अपलाइड फोर्स इधर नूं आ, बेशक वो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आ, पर साडी फोर्स इधर नूं आ, पर जिहड़ा dx नाल लगना वा वो किधरों मापिया जाना, वो उधरों, मतलब सोर्स चार्ज दे वल्लों आ रहा वा x ते इधर नूं जा रहा वा। इहदा मतलब की हो गया, अपलाइड फोर्स इधर नूं हो गई ते साडा पोजीशन वैक्टर इधर नूं हो गया। इस करके पोजीशन वैक्टर दे नाल मैं की करांगा, माइनस साइन पा दांगा, माइनस बाहर आ जाएगा। वैसे भी मैं जे वैक्टर पाना तो तां भी मैनूं माइनस साइन पाना पैना सी। सो इत्थों तक पहुँच गए। हुण देखो, जेकर असी इस चीज़ नूं सॉल्व करिए ना इंटीग्रेशन दे विच 1/x² तो इंटीग्रेशन च आपां इहनूं की लिख सकते हैं, आपां इहनूं लिख लैंदे आ x की पावर -2 उपर dx भी आ dx। इहनूं सॉल्व करना दसन रहा तो इंटीग्रेशन आपां सॉल्व किद्दां करदे आ, एक पावर वधा के उस पावर दे नाल डिवाइड कर दिंदे आ। मतलब एक ही आएगा x की पावर -2 + 1 ते नीचे यह जिहड़ी पावर आ उहदे नाल ही डिवाइड कर देंगे। हुण ये की बनिया, x की पावर -2 + 1 ये की बनिया वा, अल्टीमेटली की बनिया माइनस बनिया, x की पावर माइनस, ये की बनिया देखो -1/x। इनू सॉल्व करो तुहाडे कोलों की आएगा -1/x। पर जे लिमिट्स होण ना RA ते RB, आपां इत्थे फिर डंडा पावांगे एक, इत्थे RA ते इत्थे लिखांगे RB। नीचे की लिखीदा वा, नीचे जिथों तुरना होवे उपर जिथे पहुंचना होवे RA ते RB। हुण देखो इत्थे रूल की आ, वैसे तो +1 दे विच आपां देखिया ही होया वा, इत्थे रूल आ कि पहला अपर लिमिट पुट करो, आ माइनस का निशान मैं बाहर कढ़ लैना, x की जगह ते RB लिखो, फिर माइनस पा के, ये माइनस क्यों पाया, ये इंटीग्रेशन का रूल आ, माइनस पा के फिर की लिखो, लोअर लिमिट लिखो ए वाली। सो मेरे कोलों इनू सॉल्व करके, इन्ने पार्ट नू सॉल्व करके की आया, ए वाली चीज़ आई। एक माइनस इत्थे आ, एक माइनस इत्थे आ, कैंसल आउट हो जाएगी क्योंकि इनू मैं सैपरेटली सॉल्व कर लिया इधर। तो ये मेरे कोलों वैल्यू आई आ -q 4πε0, यदी वैल्यू आई -1/RB -1/RA। ਇਹ वाली वैल्यू आई साडे कोलों। इस माइनस नूं असीं अंदर भी मैਨੂਪਲੇਟ कर सकते हैं, RA नूं अगे ले आइए, RB नूं पिछे ले लीए तो ये माइनस साइन निकल जाएगा। हुण देखो वर्क डन A to B साडे कोलों की आया, माइनस माइनस अगे कर देना मैं, Q 4πε0 1RB -RA। ये जिहड़ा वर्क है ना A तो लैके B तक किया, ये कीता काहदे ते आ, ये कीता वा Q चार्ज दे उपर। पर इलैक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन दे विच, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल की डेफिनेशन दे विच सानू वर्क किहदे उत्ते चाहिदा वा, एक यूनिट चार्ज दे उपर। हुण देखो ये वर्क कीता वा Q चार्ज दे उपर, मान लो ये इदां वा कि ये वर्क इधर आ गया 100 ते कीता किहदे ते सी 5 कूलम चार्ज ते, ते सानू कहा जाए 1 कूलम चार्ज ते पता करो, क्योंकि 1 कूलम चार्ज ते किया गया वर्क की हुंदा वा, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल हुंदा। ते असीं की करांगा, इनू 5 नाल डिवाइड कर दांगा ते साडे कोलों रिजल्ट आ जाएगा। असीं उसी तरीके नाल करदे हां कि मान लो ये Q चार्ज ते आ, ते जेकर तुसीं 1 यूनिट चार्ज ते पता करना ना, तो यह वाले Q नूं इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई करता की आया Q 4πε0 1/RB -1/RA। ਇਹ वाला चार्ज आया साडे कोलों। ये की आ, A तो लैके B तक किया गया वर्क, A तो लैके B तक, ये साडा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल आया वा A तो लैके B तक। मतलब A ते B दे विच कितना इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल आ। हुण देखो
इस इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल की डैफिनेशन दे विच आया कि सोर्स चार्ज आया वा, तो मैं इनू इदां भी लिख सकदा वी बी माइनस वी ए, क्योंकि बी दा वड्डा होएगा, बी दा वड्डा होएगा क्योंकि लागे आ सोर्स चार्ज दे, ए दा छोटा होएगा, वी बी माइनस वी ए, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ सोर्स चार्ज के हिसाब के नाल इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल की साडे कोलों की आ डेफिनेशन बन गई आ। साडे कोलों पहलां भी डेफिनेशनस बन चुकियां वा, वो टेस्ट चार्ज के हिसाब के नाल आ, पर ये वाली असी डेफिनेशन किहदे हिसाब नाल बनाई आ, सोर्स चार्ज के हिसाब नाल बनाई आ। कई बारी जिद्दां आपां वी बी माइनस वी ए आ, लास्ट इक्वेशनस दे विच आपां लास्ट लैक्चर च आपां की कीता सी, इहनूं डी वी भी लिख लिया सी, डी वी मतलब जे ए ते बी लागे लागे आ, मतलब बहुता ज़्यादा दूर नहीं आ, डिफरेंशियल मतलब थोड़ा जिहा पोटैंशियल डिफरेंस चेंज होया डी वी, पर जे इन्हां दी फाइनाइट डिस्टेंस आ फिर डी वी ना लिखो, फिर वी बी माइनस वी ए तक ही लिखो। सो ये आ साडी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल की इक्वेशन सोर्स चार्ज के हिसाब के नाल। मैं इहदे विच थोड़ा जिहा की पॉइंट दोबारा दस दिंदा। पहलां असीं की कीता, किसी पॉइंट पी दे उपर इलैक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया, तो इस पी के उपर असी क्या कि मान लो क्यू चार्ज आ, तो उस क्यू चार्ज से कितनी फोर्स लगेगी, इन्नी फोर्स लगेगी। असी क्यू तो इलैक्ट्रिक फील्ड की उपरों असी इक्वेशन की वैल्यू भर ली आ। फिर असी क्या कि इस पी तो आपां क्यू चार्ज नूं थोड़ा जिहा डिफरेंशियली मूव किया, तो कितना वर्क करना पिया, इन्ना वर्क करना पिया। तो असी क्या कितनी फोर्स लाउणी पैनी आ, असी ये कहा कि जिन्नी फोर्स सामने तो लगती पई आ उन्नी ही लाउणी पैनी आ। वैसे बेशक ज़्यादा लाउणी पैनी आ, पर ज़्यादा नूं असी डिफाइन नहीं कर सकते, असी क्या घट तो घट उहदे बराबर लगा दो। हुण फोर्स इधर नूं लगा रहे हैं, तो जी डी एक्स डिस्टेंस आ वो इधरों मापी जानी आ, इत्थे नैगेटिव साइन लग जाना। फिर असी इहनूं सॉल्व करना वा, तो सॉल्व करके इत्थे पहुँचे, ये की आ, ये डिफरेंशियल वर्क आ, एक नंबर इक्वेशन दे देना, ये डिफरेंशियल वर्क आ पी तो थोड़ा जिहा मूव करन ते, पर असी पता की करना ए तो लैके बी तक का डिफरेंस, तो ए तो लैके बी तक का डिफरेंस पता करना, तो असी इंटीग्रेट कर दें इक्वेशन नूं, इंटीग्रेट करके असी वैल्यू कढ लैंदे आ। हुण देखो तुसीं भावें पी तो बी तक का कढ लो, भावें इदां भी ये आर्टिकल हो सकदा सी कि मैं पी पॉइंट लैंदा ही ना, मैं सीधा कहंदा ए पॉइंट आ ते बी पॉइंट आ, तो ए पॉइंट के उपर चार्ज पिया वा क्यू, तो उन्होंने थोड़ा जिहा डिफरेंशियली मूव किया, तो वह डिफरेंशियल वर्क आ गया, तो फिर टोटल ए तो बी तक का वर्क पता करो। उस तरीके नाल भी आर्टिकल हो जाना सी, वो भी बिल्कुल सही आ। सो इस तो बाद नैक्सट आर्टिकल देखते हैं कि मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं लगा आ, तो तुसीं किसी पॉइंट ए तो, ये कोई फील्ड दे विच पॉइंट आ, ए तो लैके बी तक जाना वा। पहले केस दे विच असीं की कीता सी, लीनियर लिया सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर नूं लगा होया वा, तो तुसीं जाना भी इधर नूं आ जां इधर नूं जाना वा, मतलब जां तो तुसीं 0 डिग्री एंगल ते जा रहे जो जां 180 डिग्री एंगल ते जा रहे जो। पर मान लो ए इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस दी जिहड़ियां वा डायरैक्शन आ, तो असीं पता करने चाहुंदे आ कि ए तो लैके बी तक पोटैंशियल डिफरेंस कितना वा। हुण इस केस दे विच आपां की करांगे, आपां इस केस दे विच सब तो पहला ये मानते हैं कि असी ए छोटी जी लेंथ डी एल चार्ज नूं मूव कराया, किहड़े चार्ज नूं, क्यू चार्ज नूं। क्यू चार्ज असी क्या, क्यू किहड़ा एक यूनिट चार्ज नहीं आ, क्यू किसी भी कूलम का चार्ज हो सकता वा, डी एल मूव कराया। हुण देखो जे आपां मानते हैं कि ये वाला जिहड़ा रस्ता वा ये इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल थीटा एंगल बना रहा वा, तो इस केस दे विच आपां की करांगे, इत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, इत्थे भी एंगल थीटा बनता वा। आपां की करते हैं, इस डी एल वैक्टर नूं, क्योंकि ये लेंथ आ, इस डी एल वैक्टर नूं आपां की करते हैं, रिजोल्व करते हैं, तो रिजोल्व करके आपां इहदा एक भाग किधर बनाउणा वा, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन च बनाउणा वा। आपां ये वाला भाग की लिख लैंदे आ, डी एल कॉस थीटा, तो इत्थे बिल्कुल इहदे परपेंडिकुलर की आएगा, डी एल साइन थीटा। मतलब जदों इहो जिहा केस होवे कि तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड दे पैरलल जां एंटी पैरलल नहीं चल रहे, तुसीं साइड तो एंटर होए जो, फिर तुसीं अपना जिहड़ा रस्ता वा, जिवें असीं इत्थे डी एल लिया, उहनूं तुसीं रिजोल्व कर सकदे जो। तो असीं उहनूं डी एल नूं पहलां असीं मन्निया कि बहुत छोटी जी डिफरेंशियल डी एल लेंथ लई आ, इहदा वर्क देख लैंदे आ, तो इस डी एल लेंथ नूं आपां की कर लिया, रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट दे विच, डी कॉस थीटा ते डी साइन थीटा। हुण ये डी एल डिस्टेंस मूव करन लग्गिया जिहड़ा सानूं वर्क करना पिया, वो किहड़ा वा, डिफरेंशियल वर्क आ।
ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਐਫ ਡੀਐਲ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡੀਐਲ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A ਤੋਂ B ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਐਫ ਡੀਐਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਡੀਐਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਵੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਐਫ ਡੀਐਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਕਰਾਣਾ ਵਾ, A ਤੋਂ B। ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਫਰੋਮ A to B, ਜੇ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, A ਤੇ ਸੀ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਐਫ ਡੀਐਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਐਫ ਡੀਐਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ QE ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਫ ਕੀ ਆ, QE Q ਚਾਰਜ E DL cos थीटा, एक नंबर कह देंगे इनू साडे कोलों। ते इत्थे आपां QE ही लिख लेंगे आ, QE। यह साडे कोलों इक्वेशन बन गई QE DL cos थीटा। हुण आपां इनू इदां भी लिख सकते हैं A तो B QE DL वैक्टर। ये की आ, ये वर्क आ A to B तक दा, पर किन्ने चार्ज ते आ, पर किन्ने चार्ज ते आ, Q चार्ज ते आ। ते सानू की चाहिए 1 यूनिट चार्ज ते, 1 यूनिट चार्ज ते आ ते Q नू इधर नीचे डिवाइड कर दांगे। साडे कोलों A to B Q नाल डिवाइड कर दांगे, ये की बनेगा A B EDL। इदां दी इक्वेशन असीं पहलां भी बना चुके हैं गॉस थ्योरम दे विच। साडे कोलों फ्लक्स की इक्वेशन बनी सी E DS, इत्थे असीं क्लोज इंटैगरल पाया सी, ए क्लोज सी क्योंकि उहदे विच गॉस ने की आ क्लोज सरफेस की गल कीती सी। इहनूं आपां की बोलदे आ, इस इक्वेशन नूं बोलदे आ आपां सरफेस इंटैगरल। इस इक्वेशन नूं ते जां आपां इदां कह सकदे आ सरफेस इंटैगरल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण साडे कोलों की आ इत्थे एक क्लोज नहीं आया ते ये की आई आ, एक DL किनू रिप्रजेंट करदी आ, DL एक लेंथ नू रिप्रजेंट करदी आ, सरफेस नू रिप्रजेंट नहीं करदी। इहदा मतलब आपां इहनूं की कह सकदे आ, आपां इहनूं कवांगे लाइन। इत्थे DL की आ, लाइन, लाइन इंटैगरल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण आपां इहनूं की बोलांगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। इनू की बोलना सी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। DS किनू रिप्रजेंट करता सी, सरफेस नू, किसी क्लोज सरफेस नू। ते इत्थे DL किसी रस्ते नू, किसी लाइन वाले रस्ते नू रिप्रजेंट कर रही आ। सो साडे कोलों वर्क A to B किन्ना आया, EDL आया। देखो एक नवी इक्वेशन आ गई साडे कोलों पोटेंशियल डिफरेंस दी। ये की आ, असल दे विच ये आ कि A तो B तक जाना वा ते तुहानूं किन्ना वर्क करना पैना वा। ते असीं देखिया कि वर्क A to B पर यूनिट चार्ज Q ना डिवाइड करता ना, क्योंकि असीं अपनी इक्वेशन च Q चार्ज नूं लैके तुरे सी ते एक यूनिट का कड्ढना सी ते Q नाल डिवाइड कर देना सी। साडे कोलों ये रिजल्ट आ गया AB वाला EDL। असीं इहनूं इदां भी लिख लैंदे आ कि AB EDL cos थीटा। DL नूं खोल दांगे, थीटा की आ, थीटा एंगल आ तुहाडे रस्ते दा ते इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच बनन वाला जिहड़ा एंगल आ। हुण देखो जेकर असीं कहिए कि B तो A वाले जाना वा, उल्टा कर दईए तो वो की आ, वो इन्ना ही वर्क होएगा पर नैगेटिव हो जाएगा, नैगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो इनू आपां इदां लिख सकते हैं, एक ही आ पोटेंशियल डिफरेंस आ किदे ते किदे विच, B ते A च, VB माइनस VA। मान लो B ज़्यादा है A घट है, B तो A वाल, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया साडे कोलों। असीं लिखिया भी आ A तो तुरे B वाल गए, पर कैलकुलेट करना वे B तो लैके A तक दा, जिहड़ा B तो लैके A तक दा वर्क होएगा ना, आपां इत्थे लिख लैंदे आ वर्क डन B to A पर यूनिट चार्ज Q दे। ठीक आ, जदों आपां Q नाल डिवाइड करता मतलब पर यूनिट चार्ज की गल करते पे आ। फिर आपां की करांगे, जिन्ना वर्क तुसीं मान लो A तो लैके B तक कीता वा,
ਤੇ B ਤੋਂ A ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੋਂ ਤੁਰੇ B ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ B ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ A ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ 100 ਜੂਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ B ਤੋਂ A ਤੱਕ ਮਾਈਨਸ 100। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ ਤੁਰੇ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਆਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ B ਤੋਂ A ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਾਥ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 100 ਜੂਲ ਵਰਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ? 100 ਜੂਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਰਕ 100 ਜੂਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਾਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਗਏ ਜੋ। ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ A ਤੇ B। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਤੇ B ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਏ 100 ਜੂਲ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 100 ਜੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਗਜੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ 100 ਜੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਵਰਕ ਤੇ ਸਿਰਫ A ਤੇ B ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਾਥ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਥ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਥ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਤੇ ਗਏ ਤੇ B ਤੋਂ A ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, B ਤੋਂ A ਤੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਆਏਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? A ਤੋਂ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ? ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ EDL। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਆ? V ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਰਕ ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਵੋਲਟ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SI ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵੋਲਟ ਵਾ। ਤੇ ਵੋਲਟ ਕੀ ਆ? ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਜੂਲ ਪਰ ਕੂਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੋਲਟ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ? ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ 50 ਕੂਲਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ, ਵਰਕ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਵੋਲਟ। ਵੋਲਟ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ 1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। 1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਰਕ 1 ਜੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ A ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ B ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਜੂਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 1 ਵੋਲਟ। ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਵੋਲਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਤੇ
ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਜੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 1 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਵੋਲਟ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ A ਤੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ B ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 1 ਜੂਲ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਰਕ 1 ਜੂਲ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 1 ਕੂਲਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 1 ਵੋਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 1 ਜੂਲ ਪਰ 1 ਕੂਲਮ 1 ਵੋਲਟ। 1 ਜੂਲ ਵਰਕ 1 ਕੂਲਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ 1 ਵੋਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ A B C ਜਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ? ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਜੇ DS ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ? ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ। ਧੰਨਵਾਦ।